Okay, now let me show you. Listen, create a class. Okay, double click over it, maximize the screen, control A, backspace, control A, backspace. Listen, public public class demo, public class demo. Public public static static void void main capital string string array space args. Okay, listen, if we write system.out.println, okay, and do not pass any value while calling the println method, it will not give any error. It will not give any error. Okay, so it will just print a new line. It will just print a new line. So system.out.println means just actually in depth we see the meaning of println means println empty parenthesis. It means print nothing but bring the cursor to the next line. Okay, system.out.println with blank parenthesis means print nothing but bring the cursor to the next line. Okay, so that is the reason why when you write system.out.println system.out.println hello hello. Okay, let me write here print system.out.print hello. Okay, then let me write system.out.print hello hi, then println. Then let me copy these two lines, control V, and let me write here Ritwik, R-I-T-W-I, Ritwik, and here Raj. So what will be the output? Since I have used print, so it means hello will be printed, then at the same line hi will be printed, and because of this println the cursor will move to the next line. So that is the reason why I say system.out.println nothing within the parenthesis. It means print nothing but bring the cursor to the next line. Okay, then we will get Ritwik Raj. You can see the output. You can see the output. Okay, hello hi in a single line, then Ritwik Raj in the second line. Clear? Clear na? But can we write system.out.print? System.out.print, we will get error because there is no such method in the class print string. I have already shown you. Compile, you can see no suitable method found for print, no arguments. Method java.io.print string. So this statement also proves that print and println methods are the methods of which class? Print stream class. Print stream class. Yes, you can definitely write system.out.print within double quotes \n. So it will behave like the same way. What? In which println method behaved. Okay, system.out.println within double quotes \n. Okay, listen, \n means bring the cursor to the next line, print new line. Hello hi, and then you can see Ritwik Raj. Ritwik Raj. Okay, now let us discuss one question, okay, in which we will use overloaded method. What is the question? Listen. The question is, write a menu driven program in which the user has to enter his or her choice
to do any of the following tasks. To do any of the following tasks. Any of the following tasks. Bit number 1, to calculate and display. To calculate and display the area of a circle. To calculate and display the area of a circle. Second number, to calculate and display the area of a square. And third one, to calculate and display the area of a rectangle. Area of a rectangle. Okay, clear? Define overloaded methods. Define overloaded methods to perform the above tasks. To perform the above tasks. Okay, clear? So menu driven, what is the meaning of menu driven? We have to use switch case. Yes or no? Menu driven means we have to use switch case statement. Use switch case statement. Okay, let's write the program. But before writing the program, listen. See, area of a circle is equal to pi r square. So how to write this? Math dot capital P capital I math dot pi. It will give you the value of 22/7, or directly you can write 22.0 divided by 7.0 into r square, means r into r in Java. Okay, in mathematics we write it like this, pi r square. In Java we have to write it like this, math dot pi or 22.0 by 7.0 into r into r. It means we require one parameter. It means here one parameter is required, that is r. One parameter is required, है ना? That is r. That is r. r का वैल्यू मिलेगा तभी जाके हम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट कर पाएंगे. Then area of a square. Area of a square is side into side. Yes or no? Side into side. Side square. In mathematics we write it like this. Yes or no? Side square, but in Java we will write it like this, s into s. It means here also one parameter is required. Here also one parameter is required. One parameter is required. Here also one parameter is required, that is s. But if you recall the concept of method overloading, parameter list should be different. Either you change the number of parameters or data types. So in this case, here also number of parameters is equal to 1, here also number of parameters is equal to 1. So we will have to change the data type of the parameter. Okay, we will have to change the parameter data type. Okay, one we will make float and the other we will make double, simple. Then area of a circle, sorry, area of a rectangle. Area of a rectangle is equal to length into breadth.
Yes or no? In Java also we write length into breadth. Okay, in mathematics we write LB, here we write length into breadth. Okay, it means here two parameters are required. Two parameters are required. Two parameters are required. Okay, two parameters are required. That is L and B. L for length, B for breadth. तो चलेगा, ऊपर में एक एक पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर हो गया. You can take the data type float or you can take the data type double. It depends upon you. अच्छा, int लेने से क्या होगा? int भी ले सकते हो. ऐसे तो कुछ क्वेश्चन में डिमांड किया नहीं कि क्या डेटा टाइप होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोट होने से ज्यादा अच्छा है. लेंथ का टाइप फ्लोट, ब्रेथ का टाइप फ्लोट, क्योंकि अगर पॉइंट वाला वैल्यू आएगा तो एग्जैक्ट हम लोग फिगर दे सकते हैं. इंट रहने से क्या पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला वैल्यू हट जाएगा, है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग दे नहीं पाएंगे. ठीक है. So let us write the program. Let us write the program. Please import java.util.scanner scanner public public class area calculator public public static static void main capital str ing string arrays is args. Now within the main method we will display the menu to the user. The user see this menu and enter your choice. So for that we have to create the object of scanner class is equal to new scanner system dot in. Then system dot out dot println enter system dot out dot println enter refer the menu. No, let us write key to be pressed and task to be done. Yes, key to be pressed. Okay, and right here task to be done. Task to be done. Key to be pressed, task to be done. System dot out dot println system dot out dot println. Okay, let me design it. तो की टू बी प्रेस्ड के नीचे ये थोड़ा अंडरलाइन जैसा दिखाई देगा, है ना, लगेगा हाँ अंडरलाइन किया हुआ थोड़ा अच्छा दिखेगा. देन टास्क टू बी डन. Correct. Then system dot out dot println key to be pressed. Suppose if the user enters C. Okay, so task to be done. So task to be done to calculate the area of a circle. CIRCLE to calculate the area of a circle. Okay, let me copy this line. Okay, and paste it here. Control Shift I. The user enters S to calculate the area of a square. SQUARE square. Okay, if the user enters R, so to calculate the area of a rectangle. RECTANGLE, area of a rectangle. Okay, now let me display one message. System dot out dot println \n, ताकि एक लाइन छोड़ कर आए. Refer the above menu and enter your choice. Refer the above menu and enter your choice, and then write int, not int, char, character value na, char choice choice is equal to scanner object dot next dot character at
0. So this is how we take a character value. ठीक है, अब कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो नेक्स्ट मेथड का काम क्या है, वर्ड लेना। नेक्स्ट मेथड का काम क्या है, वर्ड लेना। समझो इस चीज को ध्यान से। नेक्स्ट मेथड का काम है वर्ड को लेना। नेक्स्ट मेथड का काम है वर्ड को लेना। तो वहां से मान लो कि कोई अगर एंटर कर रहा है 1 मिनट के लिए कैमरा, ओके, CAMERA, तो ये पूरा कैमरा को रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है नेक्स्ट मेथड। ठीक, लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, तो नेक्स्ट के जगह में क्या आ गया, नेक्स्ट के जगह में आ गया कैमरा। नेक्स्ट के जगह में क्या आ गया, कैमरा, क्योंकि नेक्स्ट मेथड ने कैमरा ये वर्ड को रिसीव कर लिया। मान करके चलो, हमें स्ट्रिंग चाहिए नहीं, समझा रहा हूं मैं। बता दूं कि स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स में स्टोर रहता है, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, और ये 5 में, इंडेक्स 5। इसलिए हम लोग जब कैरेक्टर एट लिखते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज। कैरेट मेथड का काम है एक वर्ड का उस इंडेक्स का कैरेक्टर को खींच करके ले आना जो इंडेक्स वैल्यू तुम यहाँ पे पास कर रहे हो। तो कौन सा इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हो, 0। 0 पे कौन सा है, 0 पे है C, है ना। 0 पे कौन सा है, ये वाला इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे, ये इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे, ये इंडेक्स 4 पे, ये इंडेक्स 5 पे। तो इंडेक्स 0 में कौन सा कैरेक्टर है, C। तो इस पूरे जगह में अल्टीमेटली क्या चला जाएगा, C चला जाएगा। जबकि यूजर कैमरा नहीं देगा, हम लोग यूजर को बस ऐसे ही ऊपर में तो मैसेज दे दिए ना, रिफर द अबव मेनू एंड एंटर योर चॉइस। या तो यूजर C देगा, या तो S देगा, या तो R देगा। तो मान लो कि वो C भी देता है, तो C भी तो एक लेटर वर्ड के जैसा कंसिडर करेगा कि, और C अगर एक ही लेटर वो दिया तो वो पक्की सी बात है इंडेक्स 0 में स्टोर होगा। इसलिए ये तरीका है एक कैरेक्टर को रिसीव करने का। कैरेक्टर को रिसीव करने के 3 तरीके हैं, जो कि 9th क्लास में मैंने कवर किया था। फिर से किसी दिन बता दूंगा, आज अभी प्रोग्रामिंग करा रहा हूं तो एक तरीका दिमाग में रखो। ठीक है, इस तरीके से हम कैरेक्टर को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, यूजर हो सकता है कि स्मॉल सी नहीं देकर के कैपिटल सी दे दे गलती से। तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम स्विच के केसेस के अंदर केस लेवल में स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, देखो समझो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैर, फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, चॉइस इज इक्वल टू रैपर क्लास। एक कैरेक्टर है, पता होगा तुम लोगों को, CHARACTR कैरेक्टर। इसके अंदर एक स्टैटिक टू लोअर केस मेथड है, टू कैपिटल LOWER CAC, टू लोअर केस। और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, CHOICE। तो पहले क्या हुआ, यूजर जो चॉइस देगा कैरेक्टर टाइप, या तो C, या तो S, या तो R, बाई चांस अगर वो कैपिटल में दिया तो वो हम लोग टू लोअर केस मेथड में पास कर दिए, और वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, वापस से चॉइस वेरिएबल के अंदर री इनिशियलाइज यहाँ पे हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, री इनिशियलाइज हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो बहुत इजी है, सिर्फ समझने का काम है यहाँ पे। देखो, मान लो आउटपुट स्क्रीन में यूजर ने, तुमने एक मैसेज दिया, ये पूरा मैसेज आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा मैसेज यूजर को दिखाई देगा। फिर ये लाइन दिखाई देगा, रिफर द अबव मेनू एंड एंटर योर चॉइस। मान लो वो चॉइस एंटर कर रहा है कैपिटल C या कैपिटल R, मान लेते हैं कैपिटल R वो एंटर किया। तो कैपिटल R कौन से इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में। तो इस पूरे जगह में क्या आ गया, इस पूरे जगह में कैपिटल R आ गया। कैपिटल R स्टोर हो गया चॉइस के अंदर। तो तुम जब यहाँ पे चॉइस लिख रहे हो, मतलब तुम कैपिटल R को पास कर रहे हो, कैपिटल R कैरेक्टर को पास कर रहे हो। ये लोअर केस मेथड क्या करेगा, है ना, ये स्टैटिक, याद रखना, टू लोअर केस स्टैटिक मेथड है कैरेक्टर रैपर क्लास का। ये क्या करेगा, ये कैपिटल R को स्मॉल r में कन्वर्ट कर देगा, और स्मॉल r में जब कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चॉइस के अंदर री इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो वही एक ही वेरिएबल है, चॉइस के अंदर पहले क्या आ रहा है, कैपिटल R। लेकिन जब हम लोग उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से डेटा टाइप नहीं लिखा हूँ, क्योंकि एक ही वेरिएबल हम लोग 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बताया था तुम लोगों को वेरिएबल के फंडामेंटल क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी वेरिएबल के अंदर कैपिटल R की जगह स्मॉल r चला जा रहा है। ये कैपिटल R को स्मॉल r बनाने वाला मेथड है कौन, टू लोअर केस मेथड। आया समझ में। और ये पैरामीटराइज्ड मेथड है, इसमें हम लोग
अगर कैरेक्टर पास करते हैं जो अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। सर अगर लोअर केस वाले कैरेक्टर को पास करेंगे तो कुछ नहीं, जैसे का तैसा वो दे देगा। सर अगर डिजिट पास कर देंगे तो, हालांकि यहाँ डिजिट से रिलेटेड कोई बात हो नहीं रही, फिर भी बता रहा हूँ, वो डिजिट को वैसे का वैसा दे देगा। तो कोई भी अगर कैरेक्टर दूसरा अगर एंटर करोगे वैसा का वैसा मिल जाएगा। हाँ, अपर केस कैरेक्टर अगर रहेगा तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके ये तुमको देगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चॉइस वेरिएबल के अंदर री इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबका। आया समझ में या नहीं आया समझ में? ठीक है, ओके। हाँ, listen. So till here I hope it is clear. Okay. Now we will use switch swit ch switch and write here choice. Okay. Now case within single quotes. What? Your C for what? C for your area of a circle. Okay. Now for circle, we will ask the user system.out.println. We will ask the user enter the radius of the circle. Okay. Enter the radius of the circle. Enter the radius of the circle. Okay. Now let me declare the variables, required variables here. float r is equal to 0.0f. It will receive the what? The radius of the circle. Okay. Then double side is equal to 0.0. Okay. Then float length is equal to 0.0. Okay, float breadth is equal to 0.0. Okay. Now let me write here r is equal to, what is the data type of our float? So I will write scn dot next float, scn dot next float. Okay, and then call the area method. I will call the area method and I will pass the r. I will pass r as the actual argument or actual parameter. Okay, then the task of calculating the area of circle will be done by this particular method, calculating and displaying. Okay, then we all know that at the end, after each case, we need to use break statement. We need to use break statement. Then case within single quotes, your S for side, I mean square, sorry, not sides, square. Okay, so right here system.out.println, system.out.println, enter the side of the square, enter the side of the square. Okay, so side is equal to scanner object dot next double. Why double? Because the data type of variable s is double, so we will write next double. Okay, then call the area method and pass s, then break. Then case within single quotes are, okay, system.out.println, system.out.println, enter the length of the rectangle, enter the length of the rectangle. So L. बहुत बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वो फ्लोट आर। अरे बाबा ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं ना। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ हर बच्चे को कि मेन मेथड के अंदर तुम बहुत सारे वेरिएबल्स तुम्हारे दिमाग में कि हाँ ये सारे वेरिएबल्स मैं यूज करूंगा, उनको पहले ही डिक्लेयर करके डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। सर क्या ये जरूरी है कि इन वेरिएबल्स को यहाँ पे 0.0 इससे इनिशियलाइज करना? देखो कभी कभी क्या है कि हड़बड़ी में मिस्टेक आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि ऐसा कर दो कि मिस्टेक आए ही नहीं। इसलिए लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, उसी जगह में को डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो। हालांकि 0.0 का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियलाइज वो हो ही रहा है। ठीक है, तो उतना क्यों दिमाग लगाओगे, उतना क्यों क्रिटिकलिटी में फंसोगे कि कहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहिए, कहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए। हर जगह इनिशियलाइज कर दिया करो। जैसे ही लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वैसे ही अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू उस समय नहीं है तो क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दो। जैसे आर का डेटा टाइप फ्लोट था तो फ्लोट के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज 0.0f होता है, तो डाल दिया मैंने। इस तरह से सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया यहाँ पे लोकल और इनिशियलाइज किया, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से मैं नहीं लिखूंगा
फ्लोट एल हो गया, एल ऊपर में डिक्लेयर हो चुका है, तो एल इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, है ना, कंट्रोल बी, एंटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, enter the breadth of the rectangle, B-R-E-A-D-H, enter the breadth of the rectangle, so B. Okay, then let me call the area method and pass the length and breadth and then break. लास्ट में हो सकता है कि यूजर ना तो C दे, है ना तो S एंटर करे, ना तो R एंटर करे, गलती से कोई दूसरा कैरेक्टर एंटर कर दे, तो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करेंगे, डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे system.out system.out.println system.out.println invalid entry, invalid choice, CHOIC, invalid choice। और अगर डिफॉल्ट अगर हम लोग सबसे लास्ट में यूज करते हैं स्विच के ब्लॉक के अंदर, तो उसके बाद ब्रेक देना जरूरी नहीं होता है। स्विच का ब्लॉक क्लोज, ठीक, फिर मेन मेथड का ब्लॉक क्लोज। अब इसके बाद एरिया मेथड को डिफाइन करने का समय आ गया है। ठीक है, अभी मान लो इसको मैं अगर क्या करली ब्रैकेट क्लोज करके अगर कंपाइल करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि एरिया मेथड मैंने अभी तक डिफाइन किया ही नहीं। सी, अच्छा हाँ, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.0 लिख दिया, यहाँ पे f लिख देना, जब भी डेटा टाइप अगर फ्लोट होगा तो 0.0 f। हाँ, अभी क्या एरर आएगा कि कैनॉट फाइंड सिंबल मेथड एरिया, है ना, कैनॉट फाइंड सिंबल मेथड एरिया, तो हम लोगों को एरिया मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा स्विच का ब्लॉक, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मेन मेथड का ब्लॉक क्लोज हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट करो, PUBLIC पब्लिक STATIC। सर आप स्टैटिक क्यों बना रहे हो, क्योंकि देखो मैंने इन मेथड्स को कॉल करते समय ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, और कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, स्विच के अंदर से, लेकिन वो स्विच है कहाँ पे, स्टैटिक मेन मेथड के अंदर, स्टैटिक मेन मेथड के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल। तुम क्या टाइप पास कर रहे हो यहाँ पे, सर्कल का एरिया निकालने के लिए आर, आर का डेटा टाइप जाकर के देखो क्या फ्लोट, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर का टाइप भी क्या होगा, फ्लोट। आर ले लो, पी क्यू कोई भी वेरिएबल ले लो, आर लेने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन FLOAT फ्लोट एरिया, AR इज इक्वल टू व्हाट, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा FLOAT फ्लोट में, क्योंकि MATH मैथ डॉट कैपिटल P कैपिटल I डबल वैल्यू देता है, तो पाई इंटू आर तुम्हारा ये एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर डिस्प्ले कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल CIRCL, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कौन, हाँ अच्छा ये रहेगा कि तुम लोग जब भी उससे मांग रहे हो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में लिख दो इन सेंटीमीटर, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन सेंटीमीटर, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, enter the length of the rectangle in centimeter, enter the breadth of the rectangle in centimeter, in centimeter। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या, AR, क्योंकि AR वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना कैलकुलेट करने के बाद, फिर कॉन्कैटिनेशन साइन यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेथड हो गया। अब और एक मेथड PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID वॉइड एरिया। ये दूसरा एरिया मेथड क्या करेगा, स्क्वायर का एरिया निकालेगा। तो यहाँ पे देखो तुम स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या कर रहे थे, एरिया मेथड को कॉल करते समय क्या पास की, S, वेरिएबल S का डेटा टाइप जाकर के देखो डबल, तो यहाँ पे वो पैरामीटर भी डबल होगा, DOUBL, डबल एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को वो एरिया का डेटा टाइप भी डबल देना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, बस डिस्प्ले कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया of the SQUARE of the square is equal to concatenation sign AR, sorry, AR square centimeter, square centimeter, ठीक। PUBLIC public STATIC static VOID void area
इस एरिया मेथड को तुम यूज कर रहे हो कैलकुलेट करने के लिए किसका किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एरिया मेथड को कॉल करते समय क्या पास किया, दो पैरामीटर, दो एक्चुअल पैरामीटर या कह सकते हो दो आर्ग्यूमेंट एल बी। जाके देखो कि एल और बी का डेटा टाइप क्या है, एल और बी का डेटा टाइप फ्लोट फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का डेटा टाइप फ्लोट होगा, फ्लोट एल ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट ब्रेड्थ, ठीक। तो एफ एल ओ टी फ्लोट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर के जगह वहां पे रेक्टेंगल चेंज कर देंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द आर ई सी टी ए एन जी एल ई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर सेंटीमीटर। बस एरिया मेथड क्लोज करो, कंट्रोल के, नो सिंटेक्स है। तो ये तुम्हारे हो गए ओवरलोडेड मेथड्स, ये क्या हो गए, ओवरलोडेड मेथड्स, ठीक। So these are your overloaded methods. These are your overloaded methods. Overloaded methods. Condition क्या था? Having same name but different parameter list. Point number one, having same name. है ना, मेथड ओवरलोडिंग का ये तो दो कंडीशन है, इस मेथड का नाम भी एरिया है, इस मेथड का नाम भी एरिया है, इस मेथड का नाम भी एरिया है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या था, पक्का वही होना चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स या तो अलग होने चाहिए या तो डेटा टाइप अलग होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, लेकिन इसका डेटा टाइप देखो फ्लोट है, इसका डेटा टाइप डबल है, और यहाँ तो दो नंबर ऑफ पैरामीटर, तो किसी ना किसी तरीके से पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। यही कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे तुम लोगों का एक साथ मैंने दो कॉन्सेप्ट को कवर किया, एक तुम्हारा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम किया कैसे जाता है, यूजर को मेनू दिखा करके उससे चॉइस कैसे ले करके फिर हम लोग स्विच केस कैसे यूज करेंगे, है ना, वो भी दिखा दिया, और ओवरलोडेड मेथड्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, ठीक है। कंपाइल, अब समय है रन करने का, लेट अस रन द प्रोग्राम, राइट क्लिक, कॉल द मेन मेथड। देखो यहाँ पे इतने सारे मेथड्स दिखाई देंगे, एरिया एरिया एरिया, क्योंकि सारे के सारे स्टैटिक हैं। अगर तुम इसको कॉल करोगे तो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होगा, अगर तुम इसको कॉल करोगे तो डबल किसका दिए थे, याद करो, डबल किसका दिए थे, डबल वैल्यू एस, एस है ना, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। तो डबल एस में स्क्वायर का, और यहाँ पे फ्लोट आर आर, मतलब क्या तुम्हारा रेडियस सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा। तो मेन मेथड को कॉल करो ताकि तुमको मेनू दिखाई दे। ये देखो कितना सुंदर सा मेनू दिखाई दे रहा है, की टू बी प्रेस, टास्क टू बी डन। अगर यूजर सी देगा तो वो क्या कर पाएगा, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर यूजर एस देगा तो क्या कर पाएगा, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अगर यूजर आर देगा तो वो क्या कैलकुलेट कर पाएगा, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सपोज आई विल गिव जे, जे तो है ही नहीं, तो क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। क्या आया, इनवैलिड चॉइस। अब मैं दे करके देखता हूँ सी, ठीक है, सी दिया तो सीधा मुझसे सिर्फ पूछ रहा है कि सर्कल का रेडियस, तो बाकी सारा इग्नोर हो गया, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैं 10 अगर देता हूँ, तो तुम लोग करके देखना कि पाई आर स्क्वेयर, है ना, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू पाई का वैल्यू 314 पॉइंट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे बोलना, सर द आंसर इज नॉट कमिंग करेक्ट, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मान लो मैं एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 10 प्रेस किया, तो 10 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का करके देखता हूँ आर। अच्छा, हमें बताया था कैपिटल आर देने से भी चलेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट टू लोअर केस मेथड, है ना, बोला था ना तुम लोगों को, अभी कुछ देर पहले बताया था। यहाँ पे देखो, इसको लोअर केस में कन्वर्ट क्यों करें, ताकि यूजर अगर अपर केस में भी देता है सी या फिर एस या फिर आर, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी केस लेवल्स मैंने यूज किए हैं यहाँ पे स्मॉल सी यूज किया है, यहाँ पे स्मॉल सी, स्मॉल एस, स्मॉल आर, यानी कि लोअर केस में यूज किया है। सर मैं यहाँ पे कैपिटल सी यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैपिटल एस यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैपिटल आर यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो एक काम करो, यहाँ पे टू अपर केस कर दो, लोअर केस जगह अपर केस यू कैपिटल होगा, तब भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यूजर अगर लोअर केस उस समय देगा तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पे केस लेवल
का केस क्या ले रहे हो, लोअर केस या अपर केस। अगर यहाँ पे लोअर केस वाला सब यूज कर रहे हो तो यूजर के द्वारा दिया गया चॉइस लोअर केस में कन्वर्ट करो। अगर यहाँ पे केस लेवल अपर केस में अगर दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला चॉइस अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलो, where is the output screen? This is the output screen. Enter the length of the rectangle, suppose 10, and breadth of the rectangle is 4. 10 fours are 40 square centimeter. 40 square centimeter. So this program is working fine. Okay, so you can take the screenshot. Take the screenshot of this. Okay, pause the video, take the screenshot. Okay, then take the screenshot of this. Okay, then take the screenshot of this. Okay, then take the screenshot of this. And finally take the screenshot of this, these overloaded area methods. So this is the program. Okay, clear na? So I hope the thing is clear, the concept is clear, so we can do many other programs related with method overloading. Okay, so thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.